Welcome to the interpretation of last segment of chapter 7 of your prose, Tea from Assam by Arup Kumar Datta. Pranjal, a youngster from Assam, is Rajvi's classmate at school in Delhi. Means Pranjal is a young boy from Assam, means his native place is Assam, is Rajvi's classmate at school in Delhi, and he reads in Delhi school and is a classmate of Rajveer. Pranjal's father is a manager of a tea garden. Pranjal's father is a tea garden manager in Upper Assam, means in the northeast Upper Assam, ऊपरी हिस्से में Assam के. And Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. And Pranjal has invited Rajveer to visit Assam in the summer vacation. गर्मी की छुट्टियों में उसको अपने घर पर आमंत्रित किया है घूमने के लिए असम में. As a beautiful chapter starts with Garam Chaya, a vendor called out in a high-pitched voice. Garam Chaya बाबू, गरम चाया. आप जैसे ही ट्रेन में जाएंगे और ख़ास करके आपकी जर्नी 24 आवर्स से ज़्यादा है तो आपको रात को भी जो है रात को 1 या 2 बजे भी आपकी खिड़की के पास ये कहते हुए सुनेंगे. ख़ास करके अगर आप स्लीपर कोच में ट्रैवल कर रही हैं, अगर आप एसी कोच में नहीं हैं और स्लीपर कोच में हैं तो ये आवाज़ जो है पूरी रात आपके जो है जहाँ पर भी गाड़ी रुकेगी बार बार आती रहेगी. गरम चाया बाबू, गरम चाया. गरम चाया, गरम चाया. A vendor, a seller. Vendor means seller. I have written certain word meanings at the bottom portion of this one. Just go through these all. I take a very good pain in writing all these things and you must just go through. Do not pass them over. These are some good and selected words you must go through. Garam chaya, a vendor called out in a high-pitched voice. High-pitched, very loud. One seller, tea seller, called out in a very loud voice. He came up to their window and asked, Chaya Saab. He came to the window and asked, Are chai Saab, chai. Give us 2 cups, Pranjal said. Pranjal asked for 2 cups. They sipped the steaming hot liquid. They sipped. उन्होंने उसकी जो है चुस्की ली. Sipped. The steaming. Steam means भाप उठते हुए hot liquid उस गरम पेय के अंदर से. Almost everyone in the compartment was drinking tea too. Compartment means rail coach. Rail का डब्बा. Almost everyone in their compartment was drinking tea too. Means everyone was just having the tea. Do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? Rajveer said. Rajveer said to Pranjal, Do you know? क्या आपको पता है 80 करोड़ से ज़्यादा चाय के कप हर दिन जो है पिए जाते हैं पूरे विश्व के अंदर. Exclaimed Pranjal. Pranjal said in surprise, क्या बात कर रहा है? Tea really is very popular. चाय तो काफ़ी लोकप्रिय होती है. The train pulled out of the station. Then train started from the station. Pranjal buried his note in his detective book again. Pranjal was reading one detective book, means on spies and all, जिसको आप कह सकते हो जासूसी वाली पुस्तक, जिसमें कुछ जासूसों के बारे में लिखा हो. Detective again means उसने फिर अपनी नाक गाड़ ली. वो दोबारा से पढ़ने लगा प्रांजल डिटेक्टिव बुक. Rajveer too was an ardent fan of detective stories. Ardent means keen, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेने वाला. I have written the word meaning there. Ardent, second. This is ardent. Take care of pronunciation, what I tell you. This is ardent. Ardent. Adjective, showing strong feelings, passionate about something. An ardent fan of detective stories. Rajveer was also very keen about the detective stories, but at the moment he was keener on looking at beautiful scenery. But at this time he was more keen to see outside or on the beautiful sceneries outside. It was green, green everywhere. Means everything was lush green in front of the eyes. Rajveer had never seen so much greenery before. Then the soft green paddy fields gave way to tree bushes. Then soft green paddy fields gave way
तब जो धान की खेती थी, फैडी फील्ड्स, की बजाय गेव वे, की बजाय आ गई टी बुशेस, चाय की पहाड़ियों। फिर थोड़ी देर के बाद जो वो हरे भरे जो खेत थे धान की खेती के, उनकी बजाय अब चाय की जो झाड़ियां थी वो दिखाई देने लग गई। गिव वे टू टी बुशेस। It was a magnificent view. It was a beautiful view. Very good. Against the backdrop, backdrop means you can say background. Against the backdrop of densely wooded hills, जो पहाड़ियों के ऊपर, wooded hills, पहाड़ियों के ऊपर जो हरे भरे पेड़ थे या बहुत ज्यादा जो पेड़ थे पृष्ठभूमि के अंदर जो पीछे दिखाई दे रहे थे, A sea of tea bushes, एक पूरा का पूरा समंदर दिखाई दे रहा था, stretched as far as the eyes could see. उसके सामने जो है मीन्स बैकग्राउंड के अंदर पहाड़ थे, पहाड़ों के अंदर बहुत ज्यादा, पहाड़ों के ऊपर बहुत ज्यादा पेड़ दिखाई दे रहे थे जो बैकग्राउंड में, पृष्ठभूमि में दिखाई दे रहे थे, और उसके सामने बहुत सारी जो है टी बुशेस थी, चाय की झाड़ियां टाइप का एक समंदर टाइप सा पूरा फैला हुआ सा दिखाई दे रहा था। Doffing the tiny tea plants were tall sturdy sheets. Doffing, DWARF, doffing, very small, किसी के सामने बौना दिखाना, किसी को छोटा दिखाना। Doffing, जैसे एक बड़े से आदमी के सामने एक छोटा सा बच्चा खड़ा हो जाए, that you are deliberately doffing the child, उस बच्चे को आप जानबूझ करके छोटा दिखा रहे हो। Doffing the tiny tea plants, उनको वो जो छोटे छोटे टी प्लांट्स थे, टी बुशेस थी, वो बौनी नजर आ रही थी। टॉल स्टडी शेड सीट ट्रीज, बहुत बड़े बड़े जो मजबूत टाइप के पेड़ खड़े हुए थे। एमिस द ऑर्डरली रोज ऑफ बसेस, और उनके मध्य जो है या के बीच में या बीच में ये जो खड़े हुए थे, एमिस द ऑर्डरली रोज ऑफ बसेस, जो बिल्कुल सही तरीके से सजाई हुई, ऑर्डरली मीन्स तरीके से सजाई हुई जो ये बुशेस थी, बुशेस की रोज थी, उनके बीच में ये पेड़ खड़े हुए थे, बहुत ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े। बिजली मूव्ड डोर लाइक फिगर्स, और इनके बीच में वो छोटी छोटी एक तरह से गुड़िया टाइप सी वो औरतें नजर आ रही थी जो इनके बीच में काम कर रही थी खेतों के अंदर। एक बार फिर इसको देखते हैं। द इंटरप्रिटेशन इज बिट डिफिकल्ट ऑफ दिस वन। इट वॉज ए मैग्निफिसेंट व्यू, ये बहुत ही एक सुंदर नज़ारा था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, पृष्ठभूमि में जो पहाड़ियां दिखाई दे रही थी वो बहुत ज़्यादा पेड़ों से एक तरह से भरी हुई थी, और उनके सामने जो है बहुत बड़ा सा समंदर दिखाई दे रहा था टी बुशेस का। डॉफिंग द टाइनी टीज प्लांट्स वर टॉल स्टडी शीट ट्रीज, और जो बड़े बड़े ऊंचे टाइप के जो पेड़ थे उनके सामने ये छोटे छोटे टी बुशेस बॉनी टाइप सी नज़र आ रही थी, और उनके बीच में जो सही तरह से वो लाइनें टाइप सजाई हुई सी लाइनें जो थी, उनके बीच में जो है कुछ औरतें वो बहुत ही व्यस्तता के साथ, जैसे गुड़िया हो उसके अंदर, वो गुड़िया टाइप सी चलती हुई नज़र आ रही थी। What meanings I have given over here: vendor, ardent, magnificent, and doff. Doff is making someone small or present someone small. Magnificent, beautiful. Ardent, very keen or passionate. Vendor, seller of something. I'm changing the page. In the distance was an ugly building with smoke billowing out of tall chimneys. In the distance was an ugly building, and at a very far off distance we could see a very shabby building with smoke billowing out, with smoke coming out of the tall chimney of that one. उसकी चिमनी से जो है एक तरह से धुआं निकल रहा था। Hey, a tea garden, Rajveer cried excitedly. Rajveer एकदम से चिल्लाया with great excitement. Hey,
A tea garden. राजवीर एकदम से चिल्लाया, देख देख, टी गार्डन. प्रांजल, who had been born and brought up on a plantation. प्रांजल, जिसका जन्म और पालन पोषण brought up एक प्लांटेशन चाय बागान के अंदर ही हुआ था, didn't share राजवीर एक्साइटमेंट. उसने राजवीर की जो ये एक तरह से उत्तेजना सी थी, इसको ज़्यादा उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया. उसने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया. नेक्स्ट वन. ओह, दिस इज अ टाइनी कंट्री, इट्स अ ट्री कंट्री नाउ, ही सेड. वो बोला कि हाँ, अरे ये तो पूरा चाय का देश शुरू हो गया है. Assam has the largest concentration of plantations in the world. You will see enough gardens to last you a lifetime. बोलता है यहाँ पर असम के अंदर दुनिया के सबसे ज़्यादा चाय बागानों का समूह है और यहाँ पर आपकी जो है पूरा जीवन निकल जाएगा. जो है यहाँ पर इतने दिखाई देंगे आपको ये. He said the largest concentration of the plantations in the world. और उसने उसको कहा कि हाँ, यहाँ दुनिया के सबसे ज़्यादा चाय बागान हैं और यहाँ पर आपका पूरा जीवन निकल जाएगा इनको देखते देखते. लास्ट यू ए लाइफ टाइम, पूरी जिंदगी लग जाएगी आपको इनको देखते देखते. I have been reading as much as I could about tea, राजवीर said. राजवीर ने कहा, मैं इसके बारे में जितना ज़्यादा पढ़ सकता हूँ चाय के बारे में. I am reading. No one really knows who discovered tea, but there are many legends. In fact, nobody knows where from this tea has got originated. But I have two stories about this. Legend means stories. What legends? प्रांजल से क्या है, कौन सी कहानियां बता रहे हो आप इसके बारे में? I have put the dots on the right side. They are a bit important point. Okay, these dots, just take care of these. These are a bit important. Okay. Well, there is one about the Chinese emperor. One story relates to one Chinese king who always boiled water before drinking it, who used to boil water before having it. One day, a few leaves of twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. Means one day, when the water was in boiling process, some twigs, कुछ उसकी टहनियाँ टाइप सी जो उसके नीचे जल रही थी बर्तन के, fell into the water, giving it a delicious flavor. उसके अंदर गिर गई और उसको बहुत ही स्वादिष्ट उसका जो है फ्लेवर हो गया. It said they were tea leaves. It is said that they were tea leaves. ऐसा माना जाता है कि वो शायद चाय की पत्तियां थी. Tell me another. Scuffed प्रांजल. प्रांजल ने जो है उसके ऊपर एक तरह से कटाक्ष टाइप करते हुए कहा. Scuffed. I have given the word meaning at the last. Scuff. Laugh or talk about a person that you think stupid or silly. किसी पे ऐसे हंसना जैसे आप उसको मूर्ख समझ रहे हो. Tell me another. Scuffed Pranjal. Pranjal said with a laugh. Okay, tell me, come on, shoot. Tell me the another one which you want to say. We have an Indian legend too. We have an Indian story also. Bodhidharma, an ancient, very old Buddhist ascetic monk you can say. वैसे एक आदमी जो अपने सुख और भौतिक सुखों को त्याग देता है उसको एसेटिक बोलते हैं, बौद्ध भिक्षु. या आप कह सकते हो भिक्षु बाबा टाइप कह सकते हो. Bodhidharma, an ancient Buddhist ascetic, cut off his eyelids. बोधिधर्मा नाम का एक जो है बौद्ध भिक्षु होता था, उसने अपनी आईलिड्स, आंखों की पलकें काट दी थी, बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशंस, क्योंकि उसको अपनी तपस्या के दौरान नींद महसूस होती थी. 10 tea plants grew out of the eyelids, और फिर उसके आईलिड से 10 टी प्लांट्स पैदा हुए. The leaves of these plants, when put in hot water and drunk, banish sleep. और जब इन पत्तों को गर्म पानी में डाला गया और इनको पिया गया, that banish sleep, उससे स्लीप गायब हो जाती है, उससे स्लीप गायब हो जाती थी. Banish meaning is being given, send someone away or not allow them to come back.
गायब कर देना, किसी चीज को भगा देना, जिससे नींद भाग जाती थी. So you have two stories now. The first one is of a Chinese emperor who used to have the boiled water, and one day some twigs fell into that, or the leaves fell into that, and that changed the flavor of the water, that turned delicious. And the second one is of the Indian legend Bodhidharma, who was feeling sleepy during his meditations, and then he cut and through his eyelids, then 10 tree plants grew, and lastly, when the leaves of those plants were being put into hot water and being drunk, that banished the sleep. उससे जो है ये दो stories हैं. Tea was first drunk in China. Rajvi read it as far back as 2700 BC. राजवीर कहता है कि चाय को पहली बार चीन में पिया गया लगभग 2700 BC, बिफोर क्राइस्ट के करीब. In fact, words such as tea, चाय and चीनी are from Chinese. वास्तव में जो ये शब्द हैं चाय और चीनी, ये चीनी भाषा से हैं. Tea came to Europe only in 16th century and was drunk more as medicine than as beverage. और चाय यूरोप के अंदर 16वीं शताब्दी के अंदर आई, और इसको पहले एक मेडिसिन के रूप में लिया जाता था, दवाई के रूप में, एक पेय की बजाय. बेवरेज क्या होता है? एनी ड्रिंक अदर देन वाटर, दैट इज कॉल्ड बेवरेज. तो ये भी उसने बताया कि सबसे पहले ये चाइना में पी गई 2700 BC के करीब, और ये 16वीं शताब्दी के करीब यूरोप में आई. और चाय और चीनी जो ये शब्द हैं, ये चीनी भाषा के हैं, और यूरोप में इसको जो है पहले मेडिसिन के रूप में लिया जाता था, और उसके बाद में इसको जो है पेय के रूप में लिया जाने लगा. नहीं, सॉरी, पेय नहीं, इसको शुरू में जो है मेडिसिन के रूप में लिया जाता था, पेय के रूप में नहीं. द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मरियानी जंक्शन. क्लैटर्ड, रेल की पटरी में देखा होगा जब रेल ट्रैक चेंज करती है, या क्लैटर का मीनिंग होता है दो चीज़ों का आपस में बहुत तेज रगड़ खाना. द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मरियानी जंक्शन. ट्रेन बहुत ही रगड़ खातर के या चूं चूं करती हुई मरियानी जंक्शन पहुंची. द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म. बच्चों ने अपना सामान उठाया और वो भीड़ भाड़ वाली जो है उस प्लेटफॉर्म की तरफ चल पड़े. Pranjal's parents were waiting for them. तो कौन से कहाँ पर उतरे वो? मरियानी जंक्शन. Pranjal's parents were waiting for them. Soon they were driving towards ढेकियाबाड़ी. अब वो ढेकियाबाड़ी की तरफ चल पड़े. The tea garden managed by Pranjal's father. जो टी गार्डन जिसके का प्रबंधन प्रांजल के पिताजी करते थे. So Pranjal's father was a tea garden manager in ढेकियाबाड़ी. An hour later, 1 घंटे बाद, the car veered sharply off the main road. कार एकदम तेजी से, veered sharply, अपनी डायरेक्शन बदलना, तेजी से जो है एक तरफ हुई मेन रोड से, ऑफ द मेन रोड, मेन रोड से. They crossed a cattle bridge. कैटल ब्रिज होता है एक पशुओं के लिए वो गेट टाइप सा लगाना. उन्होंने पशुओं वाला गेट या कैटल ब्रिज क्रॉस किया एंड एंटर्ड ढेकियाबाड़ी टी एस्टेट, और वो ढेकियाबाड़ी एस्टेट के अंदर एंटर कर गए. ऑन बोथ साइड्स ऑफ ए ग्रेवल रोड. ग्रेवल होता है जहाँ पे रोलर लगा के उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी रोड़ियाँ डाल दें, बट तारकोल ना पड़ा हुआ हो, एक तरह से जहाँ पे ईंटें बिछाई हुई हों उसको भी आप कह सकते हो, वो भी ग्रेवल है. On both sides of the gravel road were acres upon acres of tea bushes. उसके जो एक तरह से बजरी वाला जो रोड था उसके दोनों तरफ कई कई एकड़ जो है टी बुशेस फैली हुई थी, कई कई एकड़ में. 1 एकड़ नॉर्मली एक किला होता है. एक किले को 1 एकड़ बोलते हैं नॉर्मल भाषा में. ऑल नीटली प्रून्ड
to the same height, जिसको बहुत सफाई से नीटली प्रून्ड काटा गया था, एक साइज में काटना, दैट इज कॉल्ड प्रून. ऑल नीटली प्रून टू द सेम हाइट, जिसको एक समान लगभग हाइट से काटा गया था. आपने देखा होगा हेजेस वगैरह जो गार्डन्स वगैरह में करते हैं, उनकी कटाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रूनिंग. ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स, और जो चाय चुनने वाली थी या चाय जो है जो तोड़ने वाली थी, प्लकर्स, उनका एक पूरा ग्रुप विद बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक, उनकी कमर पे जो है बांस की बनी हुई एक बड़ी सी बास्केट. वेयरिंग प्लास्टिक एप्रन्स, जो उन्होंने प्लास्टिक के चोगे टाइप से पहन रखे थे बड़े बड़े. वह प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, वो नए जो फूट करके आए हुए थे, स्प्राउटेड फूटे हुए, वो नए फूटे हुए जो लीव्स थे उनको प्लक कर रही थी लेडीज जो है. These are the word meanings. Some I have written over here: scoff, ascetic, banish, clatter. I am changing the page. We're on the last page now. Sorry. Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. Pranjal's father slowed down. प्रांजल के फादर ने जो वो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे उसको स्लो किया. To allow a tractor, एक ट्रैक्टर को परमिट किया उन्होंने, या एक ट्रैक्टर को जाने दिया. Pulling a trailer load, जो एक ट्रेलर का लोड लिए हुए जा रहा था, एक ट्रॉली टाइप खींच करके लेके जा रहा था. Of tea leaves, उसमें पूरे चाय के पत्ते थे. To पास होने के लिए, मीन्स उसके पिताजी ने अपनी गाड़ी को धीरे किया ताकि जो है एक ट्रैक्टर जो पूरे पत्तों का बोझ खींच रहा था उसको पास हो जाने के लिए. दिस इज द सेकेंड फ्लश ऑफ स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बरुआ? राजवीर आस्ट. राजवीर ने कहा, श्रीमान बरुआ, क्या ये जो है दूसरी कटाई नहीं है या फूट नहीं है इस समय की? मीन्स ये साल की दूसरी फूट है. स्प्राउटिंग, फूटना किसी चीज का. इट लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई एंड इज द बेस्ट टी. ये अब जो है मई से लेके जुलाई तक चलेगी. सेकेंड स्प्राउटिंग इसकी, सेकेंड फ्लश, और ये जो है साल में पैदा होने वाली सबसे उत्तम चाय होती है. दैट इज द बेस्ट टी फ्रॉम मई टू जुलाई. You seem to have done your homework before coming, Pranjal's father said in surprise. प्रांजल के पिताजी ने काफी सरप्राइज के साथ उसको कहा, ऐसा लगता है कि आप काफी सारा होमवर्क करके यहाँ पे आए हो. मीन्स बहुत सारी मेहनत की है तुमने, आपने काफी पढ़ाई की है चाय के बारे में जब आप ये मुझसे बोल रहे हो. यस मिस्टर बरुआ, हाँ श्रीमान बरुआ. राजवीर ने ये स्वीकार किया, एडमिटेड. बट आई होप टू लर्न मच मोर व्हाइल आई एम हियर. परंतु मैं और बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ यहाँ पर रह करके. कुल मिलाकर के वो ये कहना चाहता है कि मैं बहुत कुछ पढ़ता हूँ और मैं यहाँ पे रह के चाय के बारे में बहुत कुछ सीखूंगा. दिस इज द वर्ड मीनिंग ऑफ ईल्ड. ईल्ड इज अ वर्ब टू सप्लाई और प्रोड्यूस समथिंग पॉजिटिव सच एज प्रॉफिट, फूड और इंफॉर्मेशन. किसी भी चीज़ के बारे में मतलब उस चीज़ का वो पैदा करना, एक तरह से प्रॉफिट हो सकता है, फूड हो सकता है, या इंफॉर्मेशन. सो विद दिस आई फिनिश दिस चैप्टर में मैं आपको जो है तकरीबन सारी चीज़ें वी पीपल हैव कवर्ड ओवर हियर. सो होपफुली द थिंग्स आर क्लियर टू यू. ऑफ कोर्स देयर आर नो डिफिकल्ट वर्ड्स, ओनली 7-8 डिफिकल्ट वर्ड आर देयर व्हिच आई हैव जस्ट बीन कवर्ड फॉर यू. नाउ this particular 7th chapter is over from my side. Just do take care and try to finish your question answers.